Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about why is liquidity so important in commodities. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So सबसे पहले what are commodities? In the world of commodities जो raw materials होते हैं, जो trade होते हैं in a number of different fashions, सब कुछ स्टार्ट होता है विद अ फिजिकल कमोडिटी मार्केट. जैसे कि हम देखें अ बैरल ऑफ ऑयल, अ बार ऑफ गोल्ड, अ ट्रक load of corn or soybean, a bag of coffee, or even herds of cattle are examples of physical staples that are heart of commodity market. Other than physical market, everything else जो trade होता है is an derivative instrument जिसका price reflect होता है the value of underlying hard asset, the commodity. Physical commodities जो है वो generally trade होती है between the producer, trader and ultimate consumers in the commodity market. However, it is an derivative market where speculator, investors, arbitrageurs and other interested party brings liquidity to this asset. अगर हम कमोडिटी मार्केट को एज अ पिरामिड देखें तो सबसे पहले जो टॉप पे आएगा वो एसेट देमसेल्फ होगा. बिलो देर आर डेरिवेटिव्स. नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा लिक्विडिटी पिरामिड इज़ द ओवर द काउंटर मार्केट. उसके बाद आएगा फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ऑफन फाइनेंशियली सेटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. हाउएवर दे कैन डू और ऑफन अलाउ फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी असेट. द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द पिरामिड इज़ द फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेड होते हैं ऑन एक्सचेंज. ये कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ करते हैं अ वाइड एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स to have an interest or position in the price movement of the commodity. नेक्स्ट लेवल में आएगा ETF and ETN products जो डिज़ाइन किए गए to mimic the price variation in the asset they purport to represent. नेक्स्ट इज what is liquidity in commodity. अगर हम liquidity की बात करें तो जब हम commodities की बात करते हैं तो different raw materials ऑफर होता है जो डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को. एग्जामिन करें अगर हम मोर लिक्विडिटी एंड लेस लिक्विड असेट कमोडिटी सेक्टर के अंदर एंड स्पेसिफिक मार्केट के अंदर तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि लिक्विडिटी क्या है. प्रेशियस मेटल जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस मेटल लिक्विड होता है वो होता है गोल्ड. दिस इज़ बिकॉज गोल्ड जो है वो प्रेशियस मेटल है विद द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी. गोल्ड ट्रेड होता है इन द फिजिकल मार्केट एंड इट ट्रेड्स इन OTC forward and swap market. There are liquid future and option contracts on the exchange as well as ETF and ETNs product on the metal. Other precious metal have varying amount of liquidity. Considering other precious metal तो rhodium है. Rhodium only trades in physical market. Therefore gold जो है वो बहुत ज़्यादा liquid है than rhodium because rhodium का कोई भी futures नहीं होता. Next is energy, perhaps the most liquidity traded and unattributed commodity in the world of crude oil. However, अगर हम other energy commodity की बात करें then coal does not trade to extent to which as many diverse as crude oil does. So therefore crude oil जो है वो more liquid है than the coal. But these are two examples of commodity with the same sector that have different degrees of liquidity. There are examples of major sector including other metals, energies, grains, soft commodities and animal protein or meat. In order to distinguish between the commodities market that are liquid and those that are not, certain requirements are necessary to define the market as liquid. This requirement generally includes the following of the characteristics. जैसे कि देर मस्ट बी एन एक्टिव स्पॉट और कैश अंडरलाइंग मार्केट इन द फिजिकल कमोडिटी. फिर एक न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. देयर शुड बी ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिलीवरी mechanism. There must be a well defined relationship between the derivative and physical commodity. एक mechanism होना चाहिए to exchange the cash commodity and derivative. फिर एक कन्वीनियंस ऑफ कैश प्राइस होना चाहिए एंड प्राइस दैट रिफ्लेक्ट्स द फ्यूचर डिलीवरी ओवर द टाइम. वाई इज लिक्विडिटी सो इम्पॉर्टेंट. अगर हम फ्यूचर मार्केट की बात करें देन फ्यूचर मार्केट हैज़ सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग लिक्विडिटी बिकॉज
दे ऑल मीट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ऊपर बताए. व्हेन इट कम्स टू कमोडिटी, कोई भी मेजर कर सकता है लिक्विडिटी ऑफ अ स्पेसिफिक फ्यूचर प्रोडक्ट बाय एग्जामिनिंग द डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ ओपन बट not the close long short position. The higher the volume, the open interest, the more is liquid a market. लिक्विडिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है सारे ही असेट के रिलेटेड. पर्टिकुलरली अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें, लिक्विडिटी जो है वो इंश्योर करता है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स है जिनके पास एबिलिटी है टू बाय एंड सेल ईजीली. दिस अट्रैक्ट्स द स्पेकुलेटर एंड इन्वेस्टर ताकि वो इन्वेस्ट करे इन द मार्केट. एंड इललिक्विड मार्केट टेंड्स टू बी फार मोर वॉलेटाइल देन अ लिक्विड वन. अगर लिक्विडिटी रहेगी देन वॉलीटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी. परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू लिक्विडिटी इज़ दैट लोअर द कॉस्ट ऑफ द ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. अगर हम कंसिडर करें इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज़ और एनी अदर असेट ऑफ क्लास फॉर द मैटर, तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन से लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स है सो दैट हम उसको ईजीली बाय या सेल कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड एट द चीपेस्ट कॉस्ट इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन. जो बिड या ऑफर स्प्रेड ऑफ एन असेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. द मोस्ट लिक्विड असेट हैव द टाइटेस्ट बिड ऑफर spread, while in the less liquid market, the spread between the buying and selling prices tend to move wider, increase execution cost. If you like the video, please do like, comment, share. You can follow us on Instagram at the Daily Commodity. Thank you for watching.